we were studying this topic, that is Cayley-Hamilton theorem, wherein we have studied how to verify the Cayley-Hamilton theorem. Then to find A inverse A raised to 4, again the same type of question, but the matrix here we have to find from A raised to 8 till I. So this is quite a lengthy matrices, but using this Cayley-Hamilton theorem, we can divide this equation or this matrix by or this equation by this characteristic equation, and then the remainder we have to only find the remainder. That will give you the answer for this whole or huge equation, right? So ये homework था आपको कि आप इसमें a square plus a plus I find out करो. Then the next topic was finding similarity of matrices, wherein similar matrices, diagonalizable, algebraic and geometric multiplicity. Then some theorems we have studied, and one example we have studied that show that the matrix A is diagonalizable, and find the transforming matrix and diagonal matrix. So यहाँ पे दो cases थे. केस वन ही अगर आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो आपका मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल होगा. आप आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे और फिर एम और डी मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे. वेयर एज अगर आपके आइगन वैल्यूज रिपीटेड है 1 1 2 2 2 3 ऐसे कुछ आते हैं, देन आपको आइगन वैल्यू तो फाइंड आउट करनी ही है. उसके आगे जाके आपको अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करनी होगी हर एक आइगन वैल्यू के लिए, और बताना होगा whether they are equal to or not equal to. If they are equal to, then your matrix is diagonalizable. If they are not equal to, then your matrix is non diagonalizable. ठीक है, एक एग्जांपल हुआ है मेरे ख्याल से, और एक एग्जांपल लेते हैं इस पे. सो एग्जांपल diagonalizable matrix. लास्ट क्वेश्चन था 8 minus 8 वाला ना. ओके, all right. Is the matrix example example number 1 is the matrix A equal to 2 1 का 1 2 1 and 0 0 1. Diagonalizable, is the matrix A is diagonalizable? Question mark. If so, find the diagonal matrix. Find the diagonal form and the transforming matrix. The transforming matrix, diagonal matrix यानी diagonal form यानी D matrix और transforming matrix यानी M matrix we have to find. But moreover, first of all we have to check whether the matrix is diagonalizable or not. So दो क्राइटेरिया है, एक है आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर लो पहले. अगर डिस्टिंक्ट आते हैं तो डायगोनलाइजेबल है, आप बस M और D फाइंड आउट करेंगे. अगर डिस्टिंक्ट नहीं है, रिपीटेड है, तो फिर आपको आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करनी है और चेक करना है कि क्या वो दोनों सेम आती है या नहीं आती. तो सबसे पहले तो आपका पहला स्टेप सबके लिए सेम रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. दैट इज नथिंग बट a minus lambda I equal to 0, राइट. दैट विल बी नथिंग बट 2 minus lambda 1 1. अब ये तो आपको सबको आ जाना चाहिए. डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो इस मैट्रिक्स का. 0 0 1 minus lambda
equal to 0. That will be nothing but lambda cube minus sum of diagonal element. एग्जाम में आपको पूरा लिखना है। अभी हम लोग क्योंकि हो चुका है हमारा, इसलिए हम लोग sum of diagonal element into lambda square plus sum of minor of diagonal element into lambda minus determinant of a equal to 0. That will be nothing but lambda cube minus sum of diagonal element 2 plus 2 plus 1 is 5. So 5 lambda square plus sum of minor of the diagonal element. अब वो रफली मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। पहला नंबर है डायगोनल नंबर है 2, उसका रो और कॉलम हटा दो। दिस इज 2 into 0 that is 2 प्लस सेकेंड है डायगोनल एलिमेंट 2, उसको सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम हटा दो। 2 into 0, 2 minus 0 is 2 and then the last one, तो यहाँ पे होगा 4 minus 1 that is 3. So this will be 7 lambda. डिटरमिनेंट कितना आ रहा है boys? 3 आ रहा है। okay, equal to 0. This is your characteristic equation. Now find the roots of this characteristic equation. कितना आएगा? अगर पॉइंट में आंसर नहीं आता है तो हम लोग राइट है, अगर पॉइंट में आता है तो फिर ये इक्वेशन को दोबारा चेक करना पड़ेगा। कितना आ रहा है? मोड में जाओ, उसके बाद में इक्वेशन पुट करो, डिग्री 3 करो, फिर कोएफिशिएंट्स पुट करो और आपको आंसर मिलेगा। कितना आ रहा है आंसर बॉयज? लैम्बडा की वैल्यू 113 आती है क्या? कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है बॉयज? कर रहेगा। 113 आता है कि चेक कर लो। 113 आना चाहिए। और सिंस द आइगन वैल्यूज आया सर 113 आया। ओके राइट 113 right. Okay, since the eigenvalues are repeated, 1 2 बार रिपीट हो गया, are repeated, तो क्या होगा? the matrix A may or may not be diagonalizable. राइट। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पे जाना पड़ेगा। सो वी शैल नाउ फाइंड अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ AM एंड GM, आप पूरा फॉर्म लिखना है एग्जाम में। अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच आइगन वैल्यू और फिर देखेंगे कंपैरिजन करके। सो सबसे पहले तो फॉर लैम्बडा 1 इक्वल टू 3 या 1 ले दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप 1 लेना चाहते हैं पहले, लैम्बडा 1 इक्वल टू 1 ले लो, कोई फर्क नहीं, ठीक है। सो a माइनस लैम्बडा 1 इंटू आई इंटू कैपिटल X इज इक्वल टू 0। आपको आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। 1 के लिए आप क्रैमर्स रूल तो यूज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको इकोलॉन फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। दिस विल बी नथिंग बट यही मैट्रिक्स, बट लैम्बडा की जगह पे आप कितना पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। सो दिस विल बी 2 minus 1 that is 1। डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या? या लिख दो 2 minus 1 1 1 1 2 minus 1 1 0 0 1 minus 1 into x। x आप xyz लिखो या x1 x2 x3 लिखो, नो प्रॉब्लम, इक्वल टू 0 0 0, राइट। सिंप्लीफाई करो, दिस विल बी नथिंग बट 2 minus 1 is 1 1 1 1 1 1 and 0 0 0, यानी थर्ड रो तो आपकी पहले ही 0 मिल गई है। आपको सिर्फ एक ही ऑपरेशन करना है, सेकंड रो 0 हो जाएगी। क्या ऑपरेशन होगा? R2 minus R1 क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी, 1 minus 1 0 1 minus 1 0 1 minus 1 0। थर्ड रो तो पहले ही 0 है। x y z इक्वल टू 0 0 0। अब यहां से दोबारा से इक्वेशन फॉर्म करेंगे, बराबर है। सो
इक्वेशन फॉर्म करते हैं, वी हैव एक ही इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। कैसे आया? 1 इंटू एक्स, एक मिनट, वीडियो थोड़ा स्लो आ रहा है, अटक ही गया आई गेस। दिख रहा है क्या वॉइस? हाँ अभी आएगा, लाइव हो रहा है थोड़ा। वीडियो दिख रहा है क्या वॉइस? ऑलराइट, अभी आ रहा होगा, राइट? हाँ, तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड इक्वल टू 0। सो इसीलिए आपको मिला है नेक्स्ट पेज पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब आपके पास 3 वेरिएबल्स है। एक मिनट, वीडियो अभी तक आया नहीं है आप तक। आ रहा है क्या वीडियो? अरे कोई है क्या? आजाद, रजा, मुनीब, कुछ बोलेंगे? आपके पास एक ही इक्वेशन है और 3 अननोन्स है, सो 2 वेरिएबल फ्री रहेंगे। लेट y and z are free. So let y is equal to s and z is equal to t, so that x बनेगा आपका x plus s plus t equal to 0. So x की वैल्यू होगी माइनस एस माइनस टी। ठीक है, अब x1 that is your first eigenvector, that is x y z is nothing but x की वैल्यू है माइनस एस माइनस टी, y की वैल्यू है s और z की वैल्यू है t। This will be nothing but minus s 0 plus minus t 0 t। तो आप यहां से क्या करेंगे, s और t कॉमन ले लो, s बाहर, अंदर होगा माइनस 1 1 0, और यहां से t कॉमन ले लो, अंदर आएगा माइनस 1 0 1। एंड देयरफॉर जो आपके 2 आइगन वेक्टर्स आपको मिले हैं फॉर लैम्डा 1 इक्वल टू 1, आपको 2 आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। पहला आइगन वेक्टर होगा माइनस 1 1 0 एंड सेकेंड आइगन वेक्टर इज माइनस 1 0 1। क्लियर है सबको? अब आते हैं सेकेंड के लिए, फॉर लैम्डा 2 इक्वल टू 3। लैम्डा 2 इक्वल टू 3 के लिए आप क्रैमर्स रूल यूज कर सकते हो, राइट? सो क्या हो जाएगा, दिस विल बी a माइनस लैम्डा 2 into I into capital X is equal to 0. That will be nothing but a minus lambda 2, that will be 3. So ये आएगा 2 minus 3 1 1, then 1 2 minus 3 1 and 0 0 1 minus 3। वीडियो अटक रहा है। into x, x है आपका x y z इक्वल टू 0 0 0, राइट? यहां तक आ गया। अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन पे। दिखाओ ना, वीडियो अटक गया था। हाँ, 3 बस पुट किया आपने डायगोनल में, बाकी मैट्रिक्स सेम है। ठीक है, ये होगा माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 0 0 माइनस 2 इंटू एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 0 0। अब चाहिए तो क्रैमर्स रूल यूज करो या इकोलॉन फॉर्म यूज करो, दोनों भी चलेंगे। इकोलॉन फॉर्म करेंगे तो देखो यहाँ पे ये जो है सेम वैल्यूज है, बस साइन चेंज है। तो आप यहाँ से ये रो पूरी 0 कर सकते हो, और इसके लिए आपको एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा, राइट?
यहाँ पे ये दोनों 0 हो जाएंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 2 बनेगा। देखते हैं कैसे कर रहे हैं। तो इसको अगर मैं करता हूँ R2 प्लस R1, तो ये बनेगी -1 1 1, ये होगा 1 - 1 is 0, -1 + 1 is 0, 1 + 1 is 2, 0 0 -2। अगेन थर्ड रो में 0 कर सकता हूँ बिकॉज यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे। एक मिनट, वीडियो आने में टाइम लग रहा है। हाँ, यहाँ पे मैं इन दोनों को इसको 0 कर सकता हूँ, जस्ट ऐड करना पड़ेगा R3 + R2। सो मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ R3 + R2। तो आपका हो गया फर्स्ट रो एज इट इज -1 1 1 0 0 2 एंड यहाँ पे आएगा 0 0 0। फिर आपको यहाँ पे चाहिए था, आप 1 करने के लिए 1/2 R1 कर सकते हो, 1/2 R2। तो आपको हो जाएगा -1 1 1 0 0 1 0 0 0 इंटू x y z इक्वल टू 0 0 0। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बस आपको इक्वेशन बनानी है दोबारा से। तो दिस विल बी -x + y + z इक्वल टू 0 और यहाँ पे होगा z इज इक्वल टू 0। z की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 बिकम्स -x + y इक्वल टू 0। बराबर है कि यहाँ तक? अब दो वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, तो एक वेरिएबल फ्री होगा। सो लेट y इज इक्वल टू t। नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करता हूँ इसको। हियर लेट y is free, so let y is equal to t। y अगर t है तो ये बनेगा -x + t इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगी और दिस implies x is equal to t। so x t है, y t और z 0 है एंड therefore आपका थर्ड आइगन वेक्टर होगा x y z इक्वल टू x है आपका t, y भी है t और z है आपका 0। आप यहाँ से t कॉमन ले लो, अंदर आएगा 1 1 0। सो आपका थर्ड आइगन वेक्टर है x3, वो है 1 1 0। है समझ में? अब हमको आना है अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पे। वीडियो आएगा अभी, 2 मिनट रुक जाइए। हाँ। ऑलराइट, अब देखो तीनों आइगन वेक्टर्स मिल गए हैं। अब दोनों को कंपैरिजन करते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ पे मैं कंक्लूजन लिखता हूँ अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ फर्स्ट फॉर λ1 इक्वल टू 1, λ1 इक्वल टू 1 कितनी बार रिपीटेड था? 1 1 3 था ना। तो λ1 इक्वल टू 1 के लिए अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना होगा? जितनी बार आइगन वैल्यू रिपीटेड है उतनी, तो यह आ जाएगा 2। और इसी आइगन वैल्यू के लिए आपको दो आइगन वेक्टर्स मिले हैं। x1 मिला था आपको, वो था 1 - 1 0। एक मिनट, आपको बता देता हूँ सामने सामने। -1 1 0 एंड -1 0 1, राइट। सो ये बनेगा x1 होगा -1 1 0 एंड x2 आपको मिला था, वो था -1 0 1। ये भी वैल्यू दो मिले आपको। λ1 इक्वल टू 1 के लिए दो आइगन वेक्टर्स मिले हैं, दैट इज योर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। GM इज 2 and therefore what is your conclusion? For λ1 equal to 1, algebraic multiplicity is equal to 2, that is equal to geometric multiplicity। यानी यहाँ पे पहला जो आपका ये था, पहला स्टेप था, वो राइट है कि दोनों की अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम आ गई है। अब सिमिलरली फॉर
लैम्बडा 2 इक्वल टू 3 के लिए आप वैसे ही करके देखो, 3 कितनी बार रिपीट हुआ, एक ही बार, सो 1, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज 1। और इसके लिए आपको आइगन वेक्टर कितना मिला, एक ही मिला 1 1 0, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी होगी 1, and therefore for lambda 2 equal to 3, algebraic multiplicity is equal to 1 is equal to geometric multiplicity, दोनों सेम है। and therefore क्या हो जाएगा, क्या कंक्लूजन होना चाहिए आपका, since the algebraic and geometric multiplicity of each eigenvector are equal, therefore matrix is diagonalizable from star and double star, from and double star, you can conclude that the matrix A is diagonalizable, diagonalizable। ठीक है, यही तो बताना था। अब आते हैं मैट्रिक्स M पे। M मैट्रिक्स क्या होता है, M मैट्रिक्स इज नथिंग बट मैट्रिक्स whose columns are nothing but the eigenvectors। सो पहला आइगन वेक्टर आपको मिलेगा वो होगा ये वाला -1 1 0, सेकंड था -1 0 1 और थर्ड है 1 1 0। आंसर में प्लस माइनस आगे पीछे हो सकता है किसी ने, एक मिनट वीडियो आने दो पहले। हो सकता है यहाँ पे किसी ने -1 से पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया हो, यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया हो, तो ये बनेगा 1 -1 0 और ये बनेगा 1 0 -1। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर में वैसे आएगा चीज। तो अगर आपने देख लिया 1 -1 0, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपका आंसर रॉन्ग है, आपका आंसर राइट है। उन्होंने बस क्या किया है, इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, सो ये राइट है, ये है आपका मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स M। और आपका डी मैट्रिक्स क्या होगा, एक मिनट अटक गया है वीडियो। एंड डी मैट्रिक्स इज नथिंग बट लैम्बडा 1 0 0 0 लैम्बडा 2 0 0 0 लैम्बडा 3, दैट इज नथिंग बट 1 1 3 0 0 0 0 0 0। ये होगा आपका मैट्रिक्स M, सॉरी डी, राइट। सो हो सकता है कि 3 1 1 कोई लिया हो, जैसे आपने आइगन वैल्यू 1 1 3 लिखा है, कोई बोल सकता है कि नहीं मैं 3 1 1 लेता हूं, तो ये 3 यहाँ पे आएगा और ये 1 यहाँ पे आएगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सेम मैट्रिक्स। आया सबको समझ में ये पार्ट? So this is all about checking how your matrix is diagonalizable or not. Let us move to the next concept, that is function of a matrix. Function of a matrix. Next topic. फंक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। अब फंक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स कहाँ पे यूज होता है, जहां पे भी आपको हायर पावर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड आउट करना हो, a raised to 50 a raised to 100 ऐसा कुछ फाइंड आउट करना हो, वहां पे आपको ये टॉपिक की जरूरत पड़ेगी। अब इस टॉपिक में क्या है, दो पार्ट है। अगर आपके आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है तो एक मेथड यूज होती है, अगर आपके आइगन वैल्यूज रिपीटेड है तो अनदर मेथड यूज होती है। एक यूनिवर्सल मेथड है, आप किसी भी जो है केस में वो यूज कर सकते हो, और दूसरी सिर्फ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू रहेंगे तो ही यूज कर सकते हो। वीडियो अटक गया है, ऑलराइट। सो पहली मेथड है कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ मैट्रिक्स। मेथड 1 आप उसको बोल सकते हो। ये यूज होगी जब जब आपके आइगन वैल्यू जो है वो डिस्टिंक्ट है। कैलकुलेशन ऑफ पावर्स,
ऑफ पावर्स। आपने एक प्रीवियस थ्योरम देखा था जिसमें हमने बताया था कि m इनवर्स a इंटू डी इज इक्वल टू m a इनवर्स a इंटू m इज इक्वल टू डी। ये डायगोनलाइजेशन केस में देखा था हमने। अगर हम यहाँ से m को m से जो है प्री मल्टीप्लाई करते हैं m से और पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं m इनवर्स से, तो यहाँ से m इनवर्स हट जाएगा और यहाँ से m हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ a और यहाँ पे आ जाएगा m d m इनवर्स, राइट। अब अगर मैं रेस टू पावर करता हूँ, लेट अस से a रेस टू n, तो क्या हो रहा है m और m इनवर्स ये भी, अब a है a तो a रेस टू n मतलब a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो ये बन जाएगा m d m इनवर्स एंड सो ऑन n टाइम्स m d m इनवर्स, राइट। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, तो अगर मैं इन दोनों को क्लब करता हूँ, इन दोनों को क्लब करता हूँ, इन दोनों को क्लब करता हूँ, तो m इनवर्स m एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे। ये एसोसिएटिविटी लॉ से होता है, तो ये होगा m इंटू डी, ब्रैकेट में आप लिखेंगे m इनवर्स इंटू m, फिर अगेन d इंटू m इनवर्स इंटू m, देन अगेन d इंटू m इनवर्स इंटू m एंड सो ऑन m इनवर्स इंटू m इंटू d इंटू m इनवर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एम डी ये तो कैंसिल हो जाते हैं, यानी ये आ जाएगा मैट्रिक्स से, तो यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा, उससे मल्टीप्लाई होगा तो मैट्रिक्स सेम रह जाता है। आई से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिलता है, तो ये आएगा एम डी। देखो कितने हो रहा है 1 2 3 अप टू एन, यहाँ पे भी एक डी है, तो एन डी हो रहे हैं, तो ये हो रहा है एम डी रेस टू एन इंटू एम इनवर्स। सो ए रेस टू एन जो है is nothing but m d raised to n into m inverse. So जब आपको a raised to n का पावर यानी a raised to 100 a raised to 50 यूज करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, m और m इनवर्स जो थे पहले के वो वैसे ही रहेंगे, बस d का पावर raised to n करना है। दैट टू क्योंकि d मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो d का कितना भी पावर लेंगे तो वो भी वो डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगा, तो उसके जो डायगोनल एंट्रीज है उनका पावर रेस्ट टू हो जाएगा सिर्फ, राइट। एंड देयरफॉर whenever you want to find a raised to n, it is nothing but m as it is, d जो रहेगा ना, d मैट्रिक्स, एक मिनट वीडियो अभी तक आया नहीं है, हाँ। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d का पावर रेस टू n है और d था लैम्डा 1 लैम्डा 2 टू लैम्डा रेस टू n, तो ये लैम्डा 1 रेस टू n बनेगा 0 0 सो ऑन 0, देन सेकंड होगा 0 लैम्डा 2 रेस टू n 0 so on 0, so 0 0 0 0, लास्ट में आएगा लैम्डा n रेस टू n, बाकी के एलिमेंट 0 0 0 हो जाएगी इनटू m इनवर्स। सो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपको a रेस टू किसी का भी पावर करना है तो आप m और m इनवर्स में कुछ चेंज नहीं करेंगे, बस लैम्डा d का जो मैट्रिक्स है उसमें उसका पावर, जो जितने भी आइगन वैल्यूज है उनका पावर रेस टू n करेंगे। अगर n की वैल्यू 50 है तो 50 से रेस करेंगे, n की वैल्यू 100 है तो 100 से रेस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये कब यूज हो सकता है, जब आपका मैट्रिक्स जो है उसके आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, रिपीटेड है तो ये कर नहीं सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं ताकि समझ में आए आपको। इसमें मोस्टली 2x2 का क्वेश्चंस आते हैं, 2x2 मैट्रिसेस के, और कभी कभार 3x3 का आ सकता है। एग्जांपल नंबर 1, if a is equal to a is equal to 2 1 1 2, find a raised to 50। इसी में आप a raised to 100 भी फाइंड आउट कर सकते हो। मैं a raised to 50 कर लेता हूँ, a raised to 100 की प्रैक्टिस आप कर लेना, ठीक है। ऑलराइट, सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले कुछ भी रहने दो, आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर तो फाइंड आउट करने ही करने हैं। 2x2 का मैट्रिसेस है तो यहाँ पे क्रैमर्स रूल यूज नहीं करेंगे, इकोलॉन फॉर्म ही यूज करेंगे। सो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन,
that is nothing but determinant a minus lambda I equal to 0. That will be nothing but a minus lambda I बनेगा 2 minus lambda 1 1 2 minus lambda equal to 0. यहाँ पे होगा 2 minus lambda into 2 minus lambda minus 1 into 1 is 1 equal to 0. That will be 4 minus 2 lambda minus 2 lambda, direct multiply कर रहा हूँ, plus lambda square minus 1 equal to 0. That will be lambda square minus 4 lambda, 4 minus 1 is 3, so plus 3 equal to 0. इसके रूट्स कितने आएंगे? आपको -4 लैम्बडा के ऐसे फैक्टर्स चाहिए, सॉरी आपको 3 लैम्बडा स्क्वायर के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका एडिशन -4 लैम्बडा हो। कितना होगा? -4 आने के लिए -3 इंटू -1, एक मिनट, वीडियो आया नहीं अभी तक। -4 लैम्बडा, 3 लैम्बडा स्क्वायर के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका एडिशन -4 लैम्बडा हो, दैट इज नथिंग बट -3 -1, सो आएगा लैम्बडा स्क्वायर -3 लैम्बडा माइनस लैम्बडा प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्बडा कॉमन लो, अंदर आएगा लैम्बडा -3, यहाँ से -1 कॉमन लो, अंदर आएगा लैम्बडा -3 इक्वल टू 0। दैट विल बी लैम्बडा -3 इंटू लैम्बडा -1 इक्वल टू 0। तो आपको दो आइगन वैल्यूज मिलेंगे, एक होगा 1 और दूसरा होगा 3। आया सबको समझ में? यहाँ तक नॉर्मल है सब, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है? आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। पेज नंबर 16, पेज नंबर 17। तो अब आपको आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है फॉर लैम्बडा 1 इक्वल टू 1। you have to find the eigenvector such that a minus lambda 1 into I into capital X is 0. That will be nothing but a minus lambda 1 into I, ये है 2 minus lambda, वहां पे 2 minus 1 1, then 1 2 minus 1 into x, आप xy ले लो या x1 x2 ले लो, equal to 0 0. This will be nothing but 2 minus 1 is 1 1 1 1 into xy है this, that is 0 0. अब आपको इकोलॉन फॉर्म से ये करना है, दिस विल बी r2 minus r1, तो आपको इक्वेशन मिलेगी 1 1 0 0, और फिर आप बस सिंप्लीफाई करेंगे। एक इक्वेशन है और दो अननोन्स है, समझ में आ रहा है? सो दिस विल बी नथिंग बट x 1 into x plus 1 into y is y equal to 0. One equation, two variables, so let y is t and therefore x की वैल्यू होगी -t। अब वाइस वर्सा भी कर सकते हो, आप y की वैल्यू -t लिख सकते हो और x की वैल्यू आ जाएगी +t, कुछ भी करेंगे तो चलेगा। therefore x1 is equal to xy, that is nothing but -t and t, that will be nothing but -1 1, t कॉमन लेंगे आप चाहिए, therefore x1 is -1 1, या आप उसको सिंप्लीफाई करके 1 -1 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर लैम्बडा 2 इक्वल टू 3, वीडियो स्टॉप हुआ है। हाँ वीडियो पॉज हुआ है। अब लैम्बडा इक्वल टू 3 के लिए आप कर लेते हैं, so this will be a minus lambda 2 into I into capital X is equal to 0. That will be nothing but ये था 2 minus 3 1 1 2 minus 3 into xy equal to 0 0. सिंप्लीफाई करो, ये बनेगा -1 1 1 -1 into xy equal to 0 0. अब यहाँ पे ये -1 है, ये +1 है, आप ऑपरेशन कर सकते हो r2 plus r1 अभी भी, क्योंकि
साइन चेंज है सिर्फ, इक्वेशन सेम है। तो -1 1 एज इट इज, 1 -1 इज 0, -1 + 1 इज 0 इंटू, अगेन यहाँ पे भी एक ही इक्वेशन आएगी और दो वेरिएबल रहेंगे। ये होगा -x + y = 0। अगेन लेट y is free, so let y is t. This implies -x + t = 0, so -x = -t, so x की वैल्यू आ जाएगी t, and therefore we have x2 is second variable or second vector is xy, that is nothing but t, t। आप t कॉमन ले लो, अंदर आएगा 1 1, ये हो जाएगा आपका सेकेंड आइगन वेक्टर। यहाँ तक क्लियर है? ये पहले का एक पार्ट है हमारा, राइट। अब आपको ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स M चाहिए। एक्चुअल में हमको क्या चाहिए, देखो ओके, सो हमको एक्चुअली ऐसा चाहिए, हमको a⁻50 पूछा है ना उन्होंने। फॉर्मूला है हमारा a⁻n = m d⁻n m इनवर्स। तो अगर आपको a⁻50 चाहिए तो आपको लिखना होगा a⁻m d⁻50 m इनवर्स, ऐसा चाहिए। तो आपको m और m इनवर्स और d जो है मैट्रिसेस चाहिए होंगे, तभी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए m तो आपको पता है कि आइगन वेक्टर्स के कॉलम वाइज लिखेंगे तो आपको m मिल जाता है, और d जो है वो आइगन वैल्यू है। तो ये तो पहले ही मिल चुका है, ये m और m इनवर्स हमको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, वीडियो नहीं आ रहा है, ऑलराइट। तो m दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स या मॉडल मैट्रिक्स आप बोल सकते हो। मॉडल मैट्रिक्स इज इक्वल टू, आपको पता है दैट इज नथिंग बट x1 x2, क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स था। पहला आइगन वेक्टर आपको मिला है वो है 1 - 1, और दूसरा है 1 - 1 ही मिला है ना। हाँ 1 - 1 आप लिख सकते हो, ये लिखना है, ये लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लिखा है मैंने अभी इस बार 1 - 1, और सेकंड है 1 1। तो ये हुआ आपका मॉडल मैट्रिक्स। एक मिनट, दिख रहा है आपको? अब आपको क्या चाहिए, m इनवर्स चाहिए। m इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/determinant of m into adjoint of m, right? That will be nothing but 1/determinant of m। पहले तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटरमिनेंट m कितना आएगा, 1 - -1, दैट इज +2, बराबर है, +2 आ जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ m क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ m 2/2 के लिए क्या होता है कि आप जो मैट्रिसेस है ना उनमें इन दोनों को एक्सचेंज करते हो, 1 1, इन दोनों को एक्सचेंज करते हो और इन दोनों के साइन चेंज करते हो। तो यह आएगा -1 और इसका आएगा +1। तो यहाँ पे होगा 1 - 1 1 1। यहाँ पे मैं कहीं तो नोट लिख दूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए, फॉर यहाँ पे नोट बोल देता हूँ, ये शॉर्टकट के लिए। बाकी आपको लॉन्ग कट लेना है आप ले सकते हो। ऑलराइट, सो क्या होता है कि डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट में आप, वो तो आपको पता ही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इफ ए इज ABCD, तो डिटर्मिनेंट होगा इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ A that will be nothing but ABCD, that is nothing but A into D minus B into C। ठीक है, नेक्स्ट अगर एडजॉइंट ऑफ A कर रहे हैं, that will be nothing but जो मैट्रिक्स है उसमें इन दोनों को एक्सचेंज कर लो, D और A यहाँ पे आएंगे और इन दोनों का साइन चेंज कर लो। ये होता है शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब
एक मिनट, वीडियो लेट ही आ रहा है। एंड देयरफॉर आपको एडजॉइंट ऑफ m भी मिल गया है। आपका m इनवर्स होगा 1/2, इस फॉर्मूला में पुट कर रहा हूं मैं 1/2 ये वाला, 1/2 into adjoint of m is 1 minus 1 1 1, राइट। अब m इनवर्स हो गया, देन उसके बाद में क्या है आपका डी मैट्रिक्स है। m भी मिल गया, m इनवर्स भी मिल गया, अब डी मैट्रिक्स है। डी मैट्रिक्स इज नथिंग बट λ1 0 0 λ2, बट दैट विल बी नथिंग बट 1 और मेरे ख्याल से कितना आएगा, तो 2 है ना, 1 और 3 है, तो ये 1 और 3 0 0 बराबर है। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, d⁻50 चाहिए। यहाँ पे मैंने बताया था आपको d⁻50, एक मिनट आप पेज टर्न होने दो, राइट, यू नीड d⁻50। तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो डी मैट्रिक्स है उसका रेस टू 50 इज नथिंग बट जो आपके आइगन वैल्यूज है ना, या फिर जो डायगोनल एलिमेंट है उनका रेस टू पावर 50 कर दो सिर्फ, बाकी तो 0 0 है, वो एज इट इज रहेंगे 3⁻50। इतना ही हो जाएगा। आप चाहिए तो 3⁻50 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कैलसी से, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, इतना ही करना है आपको। अब क्या करते हैं, नाउ a⁻50 पे जाते हैं, दैट विल बी m d⁻50 m इनवर्स, दैट विल बी नथिंग बट m आपको मिला था, m है आपका 1 minus 1 1 1, d⁻50 है आपका 1⁻50 0 0 3⁻50, एंड देन आपका m इनवर्स है 1/2, यहाँ पे है m इनवर्स 1/2 ये वाला -1 1 -1 1। अब बस आपको इनका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। आप किसी भी दो मैट्रिसेस का पहले मल्टीप्लिकेशन कर लो, 1/2 को बाहर ले लो, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो भी चलेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये इसको एज इट इज रखता हूं मैं 1⁻50 0 0 3⁻50। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। या फिर आप दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं पहले। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1⁻50 इज 1⁻50 प्लस 1 × 0 इज 0, तो ये 1⁻50 रहेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 × 0 0 प्लस 3⁻50, तो यहाँ पे आ जाएगा 3⁻50। सही से दिखेगा क्या आपको? एक मिनट मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे। दिस विल बी 1/2, पहला आएगा 1⁻50, दूसरा आएगा 3⁻50। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1⁻50 प्लस 0, -1⁻50 प्लस 0 प्लस यहाँ पे आएगा 0 प्लस 3⁻50, सो 3⁻50। और सेकेंड जो है वो एज इट इज रहेगा, 1/2 से बाहर लिया हमने 1 1 -1 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, देखो -1⁻50 आपका कितना बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा ये भी, बराबर ना। 1 1 -1 1। अब सिंप्लीफाई करो, दिस विल बी 1/2 एज इट इज। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1⁻50 प्लस 3⁻50, so this is 1⁻50 plus 3⁻50। first row second column -1⁻50 plus 3⁻50, then second row first column -1⁻50 plus 3⁻50, and then minus minus plus 1⁻50 plus 3⁻50। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर फॉर a⁻50। आप चाहिए तो कैलसी से सिंप्लीफाई करो, अदरवाइज इतना आंसर इज सफिशिएंट। आया सबको समझ में? दिस इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द हायर पावर। अब a⁻100 होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक सेम होता आपका। उसके बाद में आप a⁻100 के लिए यहाँ पे 1⁻100 3⁻100 करते और फिर उसको सिंप्लीफाई करते, सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह से a⁻200 भी आता है तो भी कर सकते हैं आप, a⁻25 है तो भी कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दी
finding the value of a raised to 100, a raised to 50, any power of a using function of a matrix topic. ठीक है, I guess this much